So in the kinematic, we'll study about the motion of particles, one-dimensional particles. And in the kinematics, the first three basic equations that are used when acceleration is constant. When acceleration is constant. जब acceleration constant होता है, that means a vector is a constant. A vector is a constant. In that case, we write three equations of motions. V vector equals to u vector plus a vector t. और दूसरा वाला is for position. It gives you x vector equals to u vector t plus half a vector t square. And v vector square equals to u vector square plus 2 a vector dot x vector. So ये तीन बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होते हैं. एंड विल स्टार्ट आवर स्टडी विद दिस. और इसके बाद हम इन इक्वेशंस को और मॉडिफाई करेंगे. इसका भी बेसिक फॉर्म क्या है वो भी पढ़ेंगे. बट पहले इसी के बेस पे क्वेश्चन करते हैं. ये तो ऑलरेडी 9th में आया होगा. लेट अस डू सम क्वेश्चन ऑन दिस. सो अभी हम वन डायमेंशनल मोशन के बारे में पढ़ेंगे. जस्ट वन डायमेंशनल मोशन. सो इन दैट there will be no y coordinate or z coordinate. वन डायमेंशनल मोशन में पार्टिकल सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग ही मूव करते हैं. ओके, सो अगर x है तो सिर्फ x वेक्टर लिख सकते हैं. r वेक्टर में x i कैप और y j कैप लिखने की जरूरत नहीं है. सो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. So question is, a particle moves along a straight line. Moves at a straight line. Along the x-axis. Such that at t is equal to 0 second, it is at origin. It is at origin and is moving in the positive x. So you have to find the distance traveled and displacement of the particle in time interval 0 to 1 second and 0 to 4 seconds. So you can represent it like this. The x-axis है और t is equal to 0 पे particle, x is equal to 0 पे initial speed is 1 meter per second and acceleration, particle acceleration is always 1 meter per second square along the positive x-axis. So distance traveled is the total path length traveled and displacement is the shortest distance between two particles or 2 points. So if you want to calculate the position at 0, the position at 0 is 0. You have to calculate position at 1 second. So x calculate करना है 1 second पे. तो u t plus half a t square. Aditi, what's the answer? So 0.5. 0.5 या 1.5? ut भी है. ut plus half a t square.
सर लेकिन U1 कैसे हुआ? ये गिवन है ना? हाँ, Sir, I didn't see that. it will be 1.5 meter. So we can plot it here. ये डायग्राम प्लॉट करना इंपॉर्टेंट है अभी के लिए, स्टार्टिंग के क्वेश्चंस के लिए. t is equal to 1 second पे x will be 1.5 meter. And then similarly we can calculate the position at 4 seconds. Bharvi, what's the value for this? 12 meters. 12. So 1 into 4 plus half into a into a square. 8 plus 4, 12 meter. So we can point a plot here. T is equal to 4 second पे x की value is 12 meter. So first case में distance traveled कितना हो जाएगा? Distance traveled will be, for this case, tell me Bharvi. 0 से 1 सेकंड के लिए डिस्टेंस ट्रैवल क्या हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है और कभी टर्न बैक नहीं कर रहा, हमेशा आगे ही मूव कर रहा है. सो डिस्टेंस ट्रैवल विल बी इक्वल टू 1.5 ही होगा ना? हाँ 1.5 ही होगा. सो दिस विल बी योर 1.5 और डिस्प्लेसमेंट भी 1.5 ही होगा. सेकेंड केस में डिस्टेंस ट्रैवल भी 12 मीटर होगा और डिस्प्लेसमेंट भी 12 मीटर ही होगा. पार्टिकल हमेशा आगे जा रहा है. ठीक है, तो ये तो अपना बेसिक मेथड है जो 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको. बट व्हाट आई वांट यू टू लर्न हियर इज टू ड्रॉ ग्राफ्स. और ग्राफ से सीखेंगे हम कि कैसे सॉल्व करते हैं इसको. तो हम डिस्टेंस ट्रैवल का ग्राफ अगर बनाना चाहते हैं, सॉरी वेलोसिटी का ग्राफ बनाना चाहते हैं, तो वी कैन राइट अ सिंगल रिलेशन. v is equal to u plus at, तो 1 plus 1t. तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, जिसको हम लिख सकते हैं t plus 1. वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t is t plus 1. ये वही वाला फॉर्मूला यूज किया, v is equal to u plus at. तो हम वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं. सो t प्लस पर एक स्ट्रेट लाइन है. t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी इज 1. ये टाइम एक्सिस है, ये वेलोसिटी एक्सिस है. t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 1 है, तो लेट अस से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये मीटर पर सेकेंड है. और इसका स्लोप एक्सेलरेशन हो जाएगा, है ना. mx प्लस c में m की वैल्यू इज 1, so स्लोप 1 हो जाएगा. एंड वी कैन ड्रॉ दिस ग्राफ लाइक दिस. स्लोप 1 है मतलब ये एंगल 45 डिग्री है और स्लोप पॉजिटिव है. तो सपोज अगर वेलोसिटी मुझे लिखनी है 1 सेकेंड पे, आई जस्ट पुट 1 हियर, ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड. सो 1 सेकेंड पे वेलोसिटी यू कैन राइट इट एज 2 मीटर पर सेकेंड. यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड. अगर 4 सेकेंड पे वेलोसिटी निकालनी है, सो इट इज 4 मीटर पर सेकेंड. और t नहीं, 4 सेकेंड पे इट विल बी 4 plus 1. 4 plus 1 will be 5 मीटर पर सेकेंड. तो 4 सेकेंड कहीं यहाँ पे होगा लेटेस्ट से. 4 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इट विल बी 5 मीटर पर सेकेंड. अच्छा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हम डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रैवल कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, सो दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया गिव्स डिस्प्लेसमेंट.
एरिया अंडर VT ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। तो 0 से 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, तो ये वाला एरिया फाइंड आउट करना होगा। ये वाला एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज एरिया ऑफ, इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो सम ऑफ पैरेलल साइड हो गया 1 + 2 3 और हाइट हो गया 1 सेकेंड, सो 3/2 ये आ जाएगा 1.5 मीटर। और भाई अगर टोटल एरिया फाइंड आउट करना है तो इस ट्रेपेजियम का मतलब 0 से 4 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, तो ये एरिया ऐड करके, ये एरिया कैलकुलेट करके टोटल एरिया में ऐड कर सकते हैं। तो इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। Suppose this area you have to find. So this area will be half into sum of parallel side. So 2 + 5 7 और 7 between the height ये हो गया 3, 21/2 10.5 आएगा। तो ये 0 से 1 सेकंड में 1.5 मीटर ट्रैवल हुआ और 1 से 4 सेकंड में 10.5 मीटर ट्रैवल हुआ। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो जाएगा? 10.5 + 1.5 दैट इज 12 मीटर। अब इस मेथड का बेनिफिट है कि अगर मुझे 1 सेकंड से 4 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, दैट इज सिंपली 10.5 मीटर। यहां से डायरेक्टली लिख सकते हैं। सो वीटी ग्राफ अगर बना लिया तो वीटी ग्राफ के एरिया से मिलता है हमें डिस्प्लेसमेंट। व्हाई दिस हैपेंस अभी हम देखेंगे, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन यूज करके विल बी डिराइविंग द रिलेशन। एनी क्वेश्चंस? No, sir. Okay. Okay. So नोट डाउन करना होगा तो देन जस्ट टेल मी। सो सेकंड क्वेश्चन, अभी वो पूरा एक्सप्लेनेशन आई विल जस्ट शो इट इन डायग्राम कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, यहाँ पे एक पार्टिकल है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। t is equal to 0 पे पार्टिकल इज एट origin and initial speed is 4 meter per second and acceleration is given as -2 meter per second square। this acceleration पीछे के डायरेक्शन में, acceleration पीछे के डायरेक्शन में, ठीक है। बट वेलोसिटी आगे है, वेलोसिटी आगे के डायरेक्शन में, this speed is in forward direction। so question is calculate displacement and distance traveled, displacement and distance traveled in, पहला टाइम इंटरवल है 0 to 2 seconds, देन दूसरा टाइम इंटरवल है 0 to 4 seconds। सॉल्व दिस। कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड या एनालिटिकल मेथड। So done. ओके, फर्स्ट केस में कितना आया डिस्प्लेसमेंट? So 4 meter. एंड डिस्टेंस ट्रैवल? वो भी 4 meter. ओके, सेकंड केस में डिस्प्लेसमेंट? 0. 0 एंड डिस्टेंस ट्रैवल? 8 meter. 8 मीटर। ओके, गुड। कौन सा मेथड फॉलो किया, ग्राफ वाला या इक्वेशन वाला? ग्राफ वाला. ओके, गुड। ओके, अदर स्टूडेंट सी, यहाँ पे फर्स्ट वाला अगर सॉल्व करें तो 1 सेकेंड 2 सेकेंड पे अगर पोजीशन निकाल रहा है
सी यहाँ पे मैंने जनरल इक्वेशंस लिख दिए हैं, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, बाकी सारी वैल्यूज पुट करके सिर्फ टाइम का फंक्शन हो गया ये, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ओके, एंड दिस इज पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो मुझे किसी भी टाइम पे वेलोसिटी या पोजीशन निकालना है, सो आई कैन जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ टी। सपोज मुझे x की वैल्यू चाहिए t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे, जस्ट 2 पुट कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 4 2 जा 8 -4, दिस विल बी 4 मीटर। और सिमिलरली पोजीशन एट 4 सेकेंड फाइंड आउट करना है, जस्ट पुट 4 इन हियर, दैट विल गिव यू 0। अच्छा, x होता है पोजीशन, x is not displacement, x is not distance traveled, x gives you the position, means इसका मतलब ये है कि t is equal to 2 सेकेंड पे पार्टिकल यहाँ पे था, x is equal to 4 मीटर पे, and after that t is equal to 4 सेकेंड पे पार्टिकल वापस घर आ गया, पार्टिकल जहां से स्टार्ट, जिस पोजीशन से स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पे आ गया। इसका मतलब ये है कि पार्टिकल पहले आगे गया फिर पीछे गया, बिकॉज पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो आगे के डायरेक्शन में था, उसके बाद वो फिर रुक गया फिर पीछे गया। इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, सी लाइक दिस, अगर वेलोसिटी की बात करें तो हर सेकंड पे वेलोसिटी निकाल सकते हैं। सो लेट अस से 1 सेकंड पे वेलोसिटी निकालते हैं, 1 सेकंड पे वेलोसिटी विल बी 2 मीटर पर सेकंड। सो 1 सेकंड पे इनिशियली वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड, फिर t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, फिर t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे वेलोसिटी 0 हो गई, मींस इसी पॉइंट पे ये पार्टिकल रुक गया था। t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे वेलोसिटी इज 0, स्पीड इज 0, यहाँ पे स्पीड 0 आ गई, मींस आगे जाते जाते एक्सेलरेशन पीछे है, तो मतलब रोक रहा है, जैसे कार को ब्रेक लगा रहे धीरे धीरे रुक रहा है, बट एक्सेलरेशन अभी भी पीछे है, तो पार्टिकल फिर से पीछे चलता चला जाएगा। फिर t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे कैलकुलेट करेंगे, t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे इट विल बी 4 - 6, सो t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे पार्टिकल पीछे जा रहा होगा, t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे वेलोसिटी इज -2 मीटर पर सेकंड, और फिर t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे अगर पार्टिकल की वैल्यू, पार्टिकल का वेलोसिटी देख रहे हैं, t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे, तो इट विल बी 4 - 8, दैट विल बी -4 मीटर पर सेकंड। सो पार्टिकल पीछे ही जा रहा होगा at t is equal to 4 सेकंड, वेलोसिटी इज -4। तो पार्टिकल की वेलोसिटी पहले 4 थी, फिर 2 हुई, फिर यहाँ पे ये टर्न बैक कर लिया, यहाँ पे टर्न बैक, when it turn back then its position will start decreasing, x coordinate decrease करने लगेगा, x coordinate decrease करेगा तो distance travel तो बढ़ेगा but displacement कम होता जाएगा, this happens at t is equal to 4 सेकंड, और इसके बाद भी एक्सेलरेशन नेगेटिव ही है तो पीछे चलता चला जाएगा। सो फर्स्ट केस में तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमेशा पार्टिकल आगे मूव कर रहा था 0 से 2 सेकंड में, तो जितना डिस्प्लेसमेंट है उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल है। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि x इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में, इस फॉर्मूले में x क्या देता है, x गिव्स यू पोजीशन, ये ना तो डिस्प्लेसमेंट देता है ना तो डिस्टेंस ट्रैवल देता है, इट जस्ट गिव्स यू द पोजीशन। और सेकंड केस में क्या है, पार्टिकल पहले 4 मीटर आगे गया फिर 4 मीटर वापस आया, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया बट डिस्टेंस ट्रैवल 4 + 4 8 मीटर हो गया। एनी डाउट्स? फर्स्ट मेथड में किसी को डाउट है? नो सर। ओके, अभी इसको ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड सिंपल लगेगा, एंड तो वीटी ग्राफ बनाना होता है डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, वीटी ग्राफ बनाना होगा तो v इन मीटर पर सेकंड इधर प्लॉट करते हैं, एंड
टाइम को इधर प्लॉट करते हैं इन सेकेंड. सो टी ये इक्वेशन है ना, इक्वेशन इज v इज इक्वल टू 4 माइनस 2t. यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जिसका स्लोप नेगेटिव है, बस इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर कर सकते हैं, है ना. तो y की जगह v आ गया और x की जगह t आ गया, m की जगह कितना आ गया -2. स्लोप नेगेटिव हो गया, स्लोप नेगेटिव हो गया. ऐसे कंपेयर कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली प्लॉट कर सकते हैं. t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 4 है, t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 4 है. फिर t इज इक्वल टू मींस ये देख सकते हैं वेलोसिटी कब 0 हो रहा है, तो t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे वेलोसिटी 0 हो रहा है. स्लोप नेगेटिव है, 2 पॉइंट्स मिल गए तो ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं. 2 सेकंड पे वेलोसिटी 0 है और ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है तो कभी चेंज नहीं होगा, ऐसे ही चलता चला जाएगा. 4 सेकंड पे वेलोसिटी कभी नेगेटिव आएगा. उसके बाद हमें कैलकुलेट करने एरियाज, तो ये एरिया कैलकुलेट करेंगे और ये वाला एरिया कैलकुलेट करेंगे. सो अच्छा, एरिया कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे, a विल बी हाफ इंटू 4 इंटू 2, दैट विल बी 4 मीटर. और इसका एरिया भी सी, यूनिट्स भी देख लेते हैं ना, यूनिट्स भी करेक्ट आ रहे हैं. हाफ इंटू ये कितना है यहाँ पे 4 सेकंड पे अगर कैलकुलेट करें तो यहाँ पे 4 सेकंड पुट कर देंगे. 4 सेकंड पुट किया तो 4 माइनस 2 इंटू 4 दैट इज -4. तो यहाँ पे -4 आ जाएगा. तो ये एरिया जो है नेगेटिव आता है. एक्स एक्सिस के नीचे अगर कोई एरिया है तो नेगेटिव आता है. इंटीग्रेशन में भी अगर एक्स एक्सिस के कोई नीचे एरिया है तो वो नेगेटिव आएगा. सो ये माइनस हाफ इंटू 4, मतलब यहाँ पे हाफ इंटू -4 लिख सकते थे, हाफ इंटू -4, या तो माइनस साइन लगा के सिर्फ मैग्नीट्यूड पुट कर सकते हैं. हाफ इंटू -4 इंटू बेस है 2, और यूनिट क्या था मीटर पर सेकेंड. हाइट का यूनिट है मीटर पर सेकेंड, बेस का यूनिट है सेकेंड. सेकेंड सेकेंड कैंसिल, ये आ जाएगा -4 मीटर. तो इसका एरिया है पॉजिटिव, इसका एरिया है नेगेटिव. सो 0 से 2 सेकेंड तक के लिए, 0 से 2 सेकेंड तक के लिए एरिया इज 4 मीटर. तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रैवल दोनों ही 4 मीटर आएगा. अच्छा, डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं डेल्टा एक्स यूज करूंगा और डिस्टेंस ट्रैवल के लिए मैं स्मॉल एस यूज करता हूँ. ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 मीटर. बट अगर 0 से 4 सेकेंड तक के लिए बात करें, 0 से 4 सेकेंड तक के लिए पॉजिटिव एरिया भी है नेगेटिव एरिया भी है. पॉजिटिव एरिया नेगेटिव एरिया दोनों है. सो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए पॉजिटिव एरिया को पॉजिटिव रखते हैं और नेगेटिव एरिया को नेगेटिव रखते हैं. पर डिस्टेंस ट्रैवल कैलकुलेट करने के लिए पॉजिटिव एरिया को पॉजिटिव और नेगेटिव एरिया को भी नेगेटिव पॉजिटिव कर देते हैं. तो ये 8 मीटर आता है, क्योंकि हर टाइम हमें डिस्टेंस ट्रैवल को ऐड करना होता है. बट डिस्प्लेसमेंट कम होता है जब पार्टिकल पीछे आ रहा होता है. सो डिस्प्लेसमेंट के लिए कैलकुलेट एरिया अंडर द ग्राफ. Calculate area under the graph and take area below the x-axis as negative. x-axis बोले या time axis बोलते हैं, area below the time axis as negative. और डिस्टेंस ट्रैवल कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेट टोटल एरिया taking negative area as positive. Taking negative area as positive. ये रूल्स याद रखना है. You can write this under the notes.
निर्मित ये मेथड क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है, ठीक है, ये नोट करना है एंड देन विल मूव अहेड. निर्मित नोटेड. Yes, sir. ठीक है फिर. ओके, तो अभी एक और क्वेश्चन करते हैं इस टाइप का. लेट अस से पार्टिकल है, अगेन आगे मूव कर रहा है विद स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड से. t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल घर पे है, दैट मीन्स एट ओरिजिन, और ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है. एंड बट एक्सेलरेशन इज गिवन एज -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Acceleration is -1 meter per second square. So calculate distance traveled and displacement for time interval. First is 0 to 4 second, 0 to 3 second. Second is 0 to 5 second. Then third is 0 to 10 second. You can use any method. सर यू नहीं दिया ना? हाँ, इनिशियल स्पीड दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, या इसको 4 ही लिख लेते हैं. ठीक है, इनिशियल स्पीड इज गिवन एज 4 मीटर पर सेकेंड. सॉल्व हो गया तो टेल मी द आंसर. Done, sir. ओके, निर्मित टेल मी कि 3 सेकंड पे पार्टिकल कहाँ पे होगा? x कितना होगा? 6.5 meter away from the origin. ओके, पॉइंट 5. अदिति x कितना आ रहा है t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे? सर 7.5. 7.5. 7.5 करेक्ट लग रहा है. भारवी t इज इक्वल टू 5 सेकंड पे क्या पोजीशन है? 7.5 है. 5 सेकंड पे भी. अच्छा, अगर कैलकुलेट करेंगे तो हाँ वेलोसिटी सर. t इज इक्वल टू 5 सेकंड पे भी सेम पोजीशन पे है, बट पीछे जा रहा होगा. अच्छा, फर्स्ट केस में निर्मित कितना आएगा डिस्टेंस? फर्स्ट एल में डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा फर्स्ट केस में? 7.5 meters. 7.5 मीटर. और डिस्टेंस ट्रैवल्ड 7.5. 7.5. सेकंड केस में डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? Displacement 7.5. 7.5, बिकॉज x हमें देता है पोजीशन, तो डेल्टा x विल बी 7.5. एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड 7.5. डिस्टेंस ट्रैवल्ड 7.5 नहीं होगा. उसके लिए हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि पार्टिकल की स्पीड कब जीरो हुई, कब टर्न लिया. तो पार्टिकल की स्पीड कब जीरो हो रही है वो टाइम फाइंड आउट करने के लिए ये जीरो करना पड़ेगा. 4 माइनस टी इज इक्वल टू 0. तो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे पार्टिकल की स्पीड जीरो हो रही है. तो 3 सेकेंड पे आगे जा रहा था, 4 सेकेंड पे पीछे जा रहा है, 5 सेकेंड पे पीछे जा रहा है. तो मतलब कहीं आगे टर्न लिया होगा, एंड दैट इज एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड. तो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे टर्न लिया है. इससे पहले ये आगे जा रहा था, उसके बाद में ये पीछे जा रहा है. मैंने थोड़ा सा ऊपर दिखाया हुआ है इसको. अदिति टेल मी, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे x कितना आएगा?
t is equal to 4 seconds पे x आएगा 8. 8 मीटर। तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो जाएगा 0 से 5 सेकंड में? Distance traveled 8.5. 8.5। तो पहले 8 मीटर आगे गया, उसके बाद इतना डिस्टेंस पीछे आया, इतना 0.5 मीटर पीछे आया। ये 7.5 मीटर है, ये 8 मीटर है, तो 0.5 मीटर पीछे आया। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो जाएगा 8.5 मीटर। निर्मित क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, और किसी को डाउट? भारवी, कुशाग्र, वैष्णवी? नहीं सर। नमन? नो सर। ठीक है, ठीक है, थर्ड वाला सॉल्व करना है एंड नमन विल बी गिविंग मी द आंसर। नमन सबसे पहले बताना है कि 10 सेकंड पे पार्टिकल की पोजीशन कितनी है? -10 meters. -10 मीटर। 4 into 10 -10 into 10 by 2, 40 minus 50 -10 मीटर। वेरी गुड। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? x की वैल्यू -10 है, पहले 0 पे था, अभी -10 पे है, तो क्या लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट? तो डेल्टा x को हम लिखते हैं x फाइनल माइनस x इनिशियल, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। कितना आएगा नमन? सर 6 ब्रो 6 meters. कैसे आ गया? किससे किसको सब्ट्रैक्ट किया? x x फाइनल कितना है? -10 है ना? और x इनिशियल तो 0 है, बिकॉज 0 सेकंड पे इट वाज एट 0, तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा -10 मीटर। नहीं समझ में आया तो पूछना है। पार्टिकल यहाँ पे था, पहले आगे गया, फिर पीछे आया, पर डिस्प्लेसमेंट में तो आगे पीछे कुछ देखना ही नहीं है, सिर्फ पोजीशन देखना है। तो पोजीशन इज 10 मीटर बट बिहाइंड, 10 सेकंड पे पोजीशन इज 10 मीटर बट बिहाइंड, तो इसलिए -10 लिखते हैं। Sir, but Okay. particle ने already 16 meters travel किया था ना? हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में हम so कंसिडर नहीं करते कि बाकी मोशन कैसा था। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में बताया था कि सिर्फ जहां से स्टार्ट किया था और कहाँ पे एंड किया था उसके बीच का डिस्टेंस होता है। तो यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे है अभी पार्टिकल, तो 10 मीटर बिहाइंड है, तो डिस्प्लेसमेंट -10 मीटर हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन? no sir. So with the graph method, it is easy to calculate हाँ, the ग्राफ मेथड से कर displacement. सकते हैं, ग्राफ मेथड से बहुत इजीली कर सकते हैं। उससे आ रहा है -10? सर उससे भी किया नहीं है, हाँ, बट उससे मैं कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, फिर उससे भी ट्राई कर लेना है। डिस्टेंस ट्रेवल बताना है कितना आया नमन? फटाफट फटाफट करना है अब तो। इसको कैलकुलेशन थोड़ी करना है, बस देखना है कैसा मोशन हुआ। माइनस
माइनस माइनस डिस्टेंस ट्रेवल माइनस नहीं लगाते हैं, बस जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, जितना चला वो उतना ऐड कर देते हैं। 20 meters. 8 मीटर आगे गया, 8 मीटर वापस आया, फिर 10 मीटर पीछे गया, है ना। यहाँ से पहले 8 मीटर आगे गया, फिर 8 मीटर पीछे आया, फिर 10 मीटर पीछे गया। कितना हो गया? 28. 28 हो Sorry, गया। sorry, sir. ध्यान लगाना है, ध्यान। 8 + 8 हो जाएगा 20, और 20 + 10 हो जाएगा 28, करेक्ट है? हाँ, so 8 + 8 16 + 10, that is 26 meter. Sir, 26 final answer. अच्छा ठीक है, 26 करेक्ट ऑप्शन। तो ऐसे कैलकुलेट करना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रखना है डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते टाइम बाकी मोशन कैसा हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता। डिस्प्लेसमेंट इज जस्ट जहां से स्टार्ट किया था जहां पे एंड हुआ मोशन, ये वाला वेक्टर हो गया। ठीक है, इसमें माइनस, इसमें आई कैप भी लिख सकते हैं, बट अभी 1D में मोशन है, हर बार आई कैप लिखने का सेंस बनता नहीं कुछ। या तो चाहे तो हर जगह आई कैप लिख सकते हैं if you wish to. ओके Sir, हाँ, sir, if they ask this question in the exam, are they going to mention which method we have to use? Like नो for this question, we can use any method. यू कैन यूज एनी मेथड, और हमेशा ग्राफिकल मेथड इजी पड़ेगा। अभी ग्राफ प्रैक्टिस करने के बाद सबसे ज्यादा इजी पड़ता है ग्राफिकल मेथड। Okay. ओके, ठीक है। अच्छा, दिस वाज व्हेन बेसिक 3 इक्वेशंस थे, उन्हीं को पढ़ रहे थे। अभी आगे मूव करते हैं, 11th स्टैंडर्ड की तरफ बढ़ते हैं धीरे धीरे। अभी सेम चीजें पढ़ रहे हैं बट बहुत ही रिफाइंड फॉर्म में पढ़ रहे हैं। ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं बोला जाएगा जो गलत है या फिर जो हमेशा एप्लीकेबल नहीं है। सो मैंने बताया कि एस इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड, जिसको हम बोलते हैं टोटल पाथ लेंथ ट्रैवल्ड। एस इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड, इसके डेफिनेशन है टोटल पाथ लेंथ ट्रैवल्ड। 1 मीटर आगे गया, पीछे गया, साइड में गया, सब कुछ ऐड कर देते हैं इसमें, इसलिए बोलते हैं टोटल पाथ लेंथ ट्रैवल्ड। और इसको नेगेटिव कभी नहीं, ये नेगेटिव आ ही नहीं सकता, क्योंकि मोशन सपोज ऐसा ऐसा हो रहा है तो डिस्टेंस ट्रैवल या तो बढ़ेगा या तो अगर रुक गया तो डिस्टेंस ट्रैवल कांस्टेंट होगा। तो डिस्टेंस ट्रैवल कभी कम नहीं हो सकता, डिस्टेंस ट्रैवल कभी कम नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना है। टाइम के साथ कभी डिस्टेंस ट्रैवल कम नहीं हो सकता। बट अगर एक्स की बात करें, एक्स इज पोजीशन, पोजीशन मतलब एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। अभी 1D मोशन की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें वाई नहीं आएगा। 1D मोशन इन एक्स, सो 1D मोशन में सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, या तो सिर्फ वाई में होगा, या तो Sir, सिर्फ जेड में, या तो सिर्फ एक्स में। हाँ, sir, अभी थोड़ा मेरा लैग कर गया वीडियो. So can I switch off my video? या श्योर श्योर। अभी शायद स्टॉर्म की वजह से इंटरनेट कनेक्शन। सो एक्स इज डिस्टेंस ट्रैवल, टोटल पाथ लेंथ ट्रैवल। एस इज डिस्टेंस ट्रैवल, टोटल पाथ लेंथ ट्रैवल। एक्स इज पोजीशन, और डेल्टा एक्स जिसको हम बोलते हैं चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, पोजीशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। चेंज इन पोजीशन जिसको हम बोलते हैं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल एक्स माइनस इनिशियल एक्स। बेसिक फॉर्मूला है 1 डायमेंशंस के लिए, यही फॉर्मूला हमेशा वैलिड रहेंगे। तो डेल्टा एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। ठीक है, तो ये बेसिक 3 फॉर्मूलाज है। इनके अलावा वी डिफाइन एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड को वी लाइक टू राइट इट लाइक दिस। एवरेज स्पीड ये होता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन।
distance traveled upon time taken. And then we have the formula for average velocity. Average velocity को हम बोलते हैं displacement upon time taken. Displacement upon time taken. तो सी एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल हमेशा पॉजिटिव होता है, तो एवरेज स्पीड भी हमेशा पॉजिटिव होगा या जीरो हो सकता है. और एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, तो एवरेज वेलोसिटी भी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है. दिस थिंग्स ऑल यू कैन राइट इन योर नोट्स ना. दिस एवरीथिंग आई विल नॉट बी डिक्टेटिंग कि ये लिखना है कॉपी में. जो भी इंपॉर्टेंट लगे, जो भी ऐसा लगे कि यू कैन फॉरगेट, कैन जस्ट नोट इट डाउन. एवरेज स्पीड हमेशा जीरो या ग्रेटर देन जीरो होगा. एवरेज वेलोसिटी हमेशा it will be positive, it can be not positive, negative or zero. तो फॉर्मूला टाइप में लिखना है फॉर्म में, तो v is average speed is equal to distance traveled upon time taken and average velocity, that will be displacement upon time taken. हम चाहे तो इसको v वेक्टर लिख के i कैप लिख सकते हैं, बट 1D में लिखने की जरूरत नहीं होती है. क्या पता है कि वन डायमेंशन में ही मोशन हो रहा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव यूज करके ही काम चलाता है. ठीक है, नोट डाउन करना है. एंड देन विल डू सम प्रॉब्लम्स जो जेई में आए हुए हैं, एंड और प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करेंगे. धीरे धीरे हम 11th की तरफ बढ़ रहे हैं. फटाफट नोट करना है, देन टेल मी कि हाँ हो गया नोट. बहुत कुछ सीखना है, अब तो स्पीड धीरे धीरे बढ़ाएंगे. अच्छा, मैथमेटिकल टूल्स का अगर किसी को ऐसा लगता है कि पोर्शन छूटा हुआ है या पढ़ना है, यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी कि हाँ ये वाला पोर्शन छूटा है. आई विल सेंड यू द वीडियोस. सारे वीडियोस मैंने एडिट करके रखे हुए हैं. सर थोड़े डाउट्स है वो होमवर्क में. अच्छा, तो वो डिस्कस करते हैं, क्लास के एंड में डिस्कस करते हैं. डन सर. ओके, ठीक है. सो क्वेश्चन इज लाइक दिस कि एक बॉल को ऊपर थ्रो किया विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड. तो इनिशियली t इज इक्वल टू 0 पे y कोऑर्डिनेट 0 था. t इज इक्वल टू 0 पे y कोऑर्डिनेट 0 था. और एक्सेलरेशन भी लो, एक्सेलरेशन हो जाएगा g, इसकी वैल्यू है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. सो यू हैव टू फाइंड एवरेज स्पीड and average velocity. First time interval is from 0 to 1 second. Second time interval from 0 to 3 second. And third time interval from 0 to 4 second. फटाफट सॉल्व करना. ऑफ कोर्स कोई बॉल ऊपर थ्रो करेंगे तो पहले पार्टिकल ऊपर जाएगा, फिर साइड में नहीं जाएगा. ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ कि रिप्रेजेंट करने में इजी है. फिर पार्टिकल नीचे आएगा. तो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट. तो पहले ये इक्वेशन लिख लेते हैं. v इज इक्वल टू 20 माइनस 10t. तो यहाँ पे स्लोप नेगेटिव आ रहा है. t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड. तो बाकी टाइम पे भी हम वेलोसिटीज लिख सकते हैं. जैसे 1 सेकेंड पे इट इज 10 मीटर पर सेकेंड. 2 सेकेंड पे वेलोसिटी 0 हो जा रही है, मींस 2 सेकेंड पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा. फिर 3 सेकेंड पे -10 मीटर पर सेकेंड.
and 4 second पे velocity is 20 meter per second. Nice. Sir, done. Okay. Vaishnavi, can you tell me the answer for the first one? If you're saying something, I can't hear you. Vaishnavi, can you hear me? Kushag? Am I audible? Yes, sir. Okay. Okay, Aditi, tell me पहला वाला area कितना आ रहा है? हाँ sir, पहला वाला from 0 to 1 बोलना है ना, हाँ, तो वो 15 आ रहा है. 15 आएगा. फिर 1 से 2 सेकंड तक का एरिया ये कैलकुलेट कर सकते हैं. That will be 10 into half into base into height, तो 5 मीटर आ जाएगा. अदिति, कौन सा मेथड यूज किया? ग्राफ वाला या एनालिटिकल? ग्राफ वाला. ओके. एंड भारवी, यू? Graph. ओके. ओके, तो टेल मी फॉर 0 से 1 सेकंड के लिए भारवी, व्हाट वुड बी द डिस्प्लेसमेंट? 15 meters. 15 meter. And distance traveled? 15 meters. Okay. Second case में that is 0 to 3 second बोला गया. So tell me the displacement. 15 meters. 0 to 3 second में displacement will be 15 meter. Yeah. See यहाँ पे 0 से 3 second में positive area is 15 plus 5 20, negative area is 5. तो 20 minus 5 is 15. और distance travel कितना आएगा? 25. 25. Third, Nirmit, can you tell me 0 से 4 second के लिए? Displacement is 0. Displacement is 0. Good. Distance traveled? Forty. 40. Very good. So see, graph method से बड़ा आसान हो जाता है कैलकुलेशन. और किसी को कोई क्वेश्चन या डाउट है? Sir, you had asked average speed and average velocity also. हाँ, वो फाइंड आउट करना था. अच्छा, टेल मी Aditi, average speed for the first one. Sir, average speed और average velocity दोनों 15 है. दोनों 15 है, करेक्ट. मीटर पर सेकेंड. सेकेंड केस में Speed is 8.33 meter per second. average speed is 25 by 3. 25 by 3. Okay.
and average velocity. Well, velocity 5 है. Average velocity 5. थर्ड केस में Speed 10 है और velocity 0. 40 by 4 तो 10 and average velocity will be 0. ये average speed है and ये average velocity. Good, सारे आंसर्स करेक्ट है. ठीक है. ओके अभी कुछ क्वेश्चंस करते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पे. यहाँ तक कोई क्वेश्चन या डाउट है देन यू कैन आस्क एंड देन विल कंटिन्यू फॉरवर्ड. एक क्वेश्चन करते हैं जो जेईई मेंस में आया था लास्ट ईयर एंड क्वेश्चन बड़ा इजी था. 1 मिनट से ज्यादा भी नहीं लगना चाहिए इसमें. तो क्वेश्चन वाज कि कार ट्रैवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस. कार ट्रैवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस. सो लेट अस से 0 से L तक जो डिस्टेंस है it travels with 40 किलोमीटर पर आवर. And the second half of the distance बोला है तो यहाँ पे मैं 2L लिख रहा हूँ. ये L है तो ये 2L है ना. And this it travels with 60 किलोमीटर पर आवर. And you have to find the average speed of the car. Find average speed of the car. Okay. सर L टाइम है ना? L डिस्टेंस है. L गिवन नहीं है, इसे तो मैंने पुट किया है यहाँ पे. ऐसा दिया हो कि पहला हाफ जो डिस्टेंस है वो 40 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल किया, दूसरा हाफ डिस्टेंस 60 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल किया. मींस अगर टोटल डिस्टेंस 2L है तो ये डिस्टेंस L है और ये डिस्टेंस L है. तो टोटल टाइम ट्रैवल कैलकुलेट करना है. टोटल डिस्टेंस तो ऑलरेडी 2L दिए मींस या अज्यूम्ड. देन फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार. फॉर्मूला वही यूज करना है, ऐसा नहीं कि 60 + 40/2 यूज कर दिया. 60 + 40/2 जो करेंगे उनका आंसर सॉल्व करने से पहले ही गलत हो जाएगा. तो यहाँ पे टाइम फाइंड आउट कर लेना है. यहाँ पे टाइम फाइंड आउट करके टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम कर देना है. फिर ऑप्शंस दिए हुए हैं 40, 45, 48, 60. 50 दिया भी नहीं है. जेई एडवांस वाला क्वेश्चन होता तो सबसे पहले 50 ही दिया होता, क्योंकि स्टूडेंट्स वही मार्क करते हैं सबसे पहले. 40 और 60 का एवरेज हो गया 50. ये 4 ऑप्शंस दिया है. देखते हैं सबसे पहले कौन सॉल्व करते हैं. So done. व्हाट्स द आंसर? 48. 48. Any other student? Sir, I am not getting it. अच्छा, और कोई? अच्छा यहाँ पे सी जो L डिस्टेंस है उसके लिए स्पीड दिया हुआ है तो टाइम निकाल सकते हैं. टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड. और सेकंड के लिए भी टाइम निकाल सकते हैं, दैट वुड बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड.
तो एवरेज स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल दैट इज L plus L divided by total time taken, L by 40 plus L by 60. अदिति ऐसे ही सॉल्व किया था क्या? Yes, sir. ओके, फिर तो 48 करेक्ट होना चाहिए। तो एल एल यहाँ पे 2L हो जाएगा और यहाँ पे 1/40 प्लस 1/60। तो ये आ जाएगा 48 आ जाएगा, 48 किलोमीटर पर आवर। एल एल कैंसिल आउट हो जाएगा, एल हमने अज्यूम किया था और वो कैंसिल आउट हो गया। एवरेज स्पीड में और एवरेज वेलोसिटी में फॉर्मूला याद रखना है। 40 प्लस 60/2 कभी नहीं करना कि दो स्पीड को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया, तीन स्पीड को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दिया। कुशागर क्लियर हुआ क्या? हाँ सर, मैं बस लिख रहा था। ओके, 48 is the correct option. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ऐसे कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। सो man walks for 2 hours at speed 10 kilometer per hour. Then 3 hours for then for 3 hours at speed 5 kilometer per hour. Find average speed. अज्यूम कि मैन टर्न नहीं कर रहा, सीधे रास्ते पे चलते चला जा रहा है। Done, sir. Yeah, if you are done, मैं सभी कई सारे क्वेश्चन करने वाले छोटे छोटे। If you are done, just send me the answer on the chat. And I want अगर हो भी गया, किसी और ने बता भी दिया तो तुम, so you also have to send. I want to know कि हाँ सबने सॉल्व किया हुआ है। Number, this is one, this is two. All students, will keep sending your answers in chat. सर थर्ड क्वेश्चन में कांस्टेंट स्पीड यू एंड वी है ना? हाँ, U and V है ये। U and V के टर्म्स में ही आंसर करना है। So in question 4 वो intervals with के बाद क्या लिखा है? Constant speed. I'll write in short, cot means constant. Okay. Okay, let's discuss this. Bharti, send me the solutions on WhatsApp chat. Means Zoom chat में एक ऑप्शन होता है कि आंसर सेंड कर सकते हैं।
Sir, I'm just doing the last question, question 6. अच्छा, लास्ट वाला क्वेश्चन Done, में sir. टाइम लगेगा, दैट आई विल बी गिविंग यू एज टू डू एट होम. अच्छा Okay, क्वेश्चन है sir. लास्ट वाला. Sir, पहले वाले 5 के आंसर्स भेजे हैं. या सो भारवी ने आंसर सेंड किए हैं, सर व्हाट्सएप पे भेजूं? अदिति ने सेंड किया है, नमन नहीं, अभी डिस्कस कर लेते हैं. कुशाग्र ने कोई आंसर नहीं सेंड किया. कुशाग्र ने कितने सॉल्व कर लिए? वैष्णवी ने आंसर फोर्थ सेंड वाला किया, कर रहा हूँ. फोर्थ वाला. अच्छा कुशाग्र, फर्स्ट वाले का आंसर कितना आ रहा है? कुशाग्र, फोर्थ फर्स्ट वाले का आंसर इज कुशाग्र रेस्पॉन्ड करना ही बंद कर देते हैं. अच्छा वैष्णवी टेल में फर्स्ट वाले का कितना आंसर आ रहा है? Sir, am I audible? या कीप योर माइक क्लोज, मे बी उसकी वजह से दिक्कत आ रही है. 0.8. 0.8. नमन का सर 7. 7 करेक्ट आंसर लग रहा है. सी पहले 2 घंटे ट्रैवल किए विद 10 किलोमीटर पर आवर, तो 20 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया. फिर बाद वाले 3 घंटे ट्रैवल किए विद 5 किलोमीटर पर आवर, तो 15 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया. तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम 35 बाय 5, तो ये 7 किलोमीटर पर आवर आएगा. वैष्णवी सेकंड वाला कितना आ रहा है? सेकंड वाला नमन ने भी सॉल्व कर लिया, एंड they already got the answer. सेकंड वाले का आंसर 5. 5. नमन कितना आ रहा है सेकंड का? सर 6. 6. कैसे किया सॉल्व? सर पहले टाइम निकाला. टाइम कितना आया पहले वाले के लिए? सर पहले वाले के लिए 4 सेकंड्स. 4 आवर. सेकंड वाले के लिए सॉरी सर, आवर्स. सॉरी हाँ, सॉरी सर, hours. आवर्स. सेकंड वाले के लिए 1 आवर. 1 आवर. हाँ 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर पर आवर है, तो 1 आवर. टोटल डिस्टेंस हो गया सर 30, टोटल टाइम हो गया 5 ना, ऐसे ही किया, तो 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा. हाँ हाँ हाँ. फिर भी थर्ड वाले का आंसर कितना आया? 2 UV divided by V plus U. 2 UV divided by U plus V. Yeah. So Aditi got the same answer, and Bharvi got the same answer. So ये हो जाएगा 2 UV divided by U plus V. अदिति फिफ्थ वाला कितना आया? सर वो थर्ड था. हाँ ये थर्ड था. फोर्थ का भी सेम है, सेम एज थर्ड. सेम एज थर्ड. भारवी व्हाट्स हाँ योर आंसर? मतलब फोर्थ वाला कितना आया? U plus V by 2 आया. U plus V by 2. भारवी का आंसर करेक्ट लग रहा है. इस बार क्या किया कि 2 इक्वल टाइम इंटरवल है, मींस यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल किया, फिर यहाँ से यहाँ तक.
तो टाइम सेम है, तो पहले में डिस्टेंस हो जाएगा यूटी, सेकेंड में डिस्टेंस हो जाएगा वीटी, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा यूटी प्लस वीटी बाई 2t। बहुत सारा टी कैंसल आउट होके u प्लस वी बाई 2 आ जाएगा। ये करेक्ट आंसर होगा। So, but it covers two equal distances. Sorry, two equal time intervals. हम्म हेलो। So, because it covers two equal time intervals with constant speed u, इसलिए हम्म। मैंने दोनों टाइम इंटरवल्स के लिए कांस्टेंट स्पीड u लिया। तो मैंने हाँ, तो मैंने जाते समय मैंने हम्म टाइम को x लिया, तो x इंटू यू प्लस एक्स इंटू यू। फिर वापस आते समय भी मैंने वो सेम डिस्टेंस लिया, तो फिर 2xu प्लस 2xu, तो 4xu हम्म। टोटल डिस्टेंस। अच्छा, नहीं, रिटर्न होते टाइम स्पीड v था, दैट ये कंसीडर करना था। हाँ, ओके। ओके। देन फिफ्थ वाला कितना आंसर आया निर्मित? 2v plus u divided by 3 टू v वी double प्लस second. यू डिवाइडेड बाई 3, करेक्ट है। सिक्स वाला क्वेश्चन यू विल ट्राई एट होम, आई विल जस्ट राइट डाउन द आंसर्स। इसका आंसर है 2v1 बाय इंटू v2 प्लस v3। ये अच्छा क्वेश्चन है, इफ यू कैन सॉल्व दिस मींस सीखा है, मींस यू गॉट द mental ability to do these type of problems. This is the average speed. क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा, तो अभी आगे बढ़ते हैं। दिस वाज एवरेज स्पीड। सर, हाँ, can you just show question 4 for 1 minute? या इसमें क्वेश्चन अच्छे से फ्रेम करना चाहिए था। Let me write down the question like this. Particle moves for two equal time intervals with constant speed u and v respectively. अभी कंफ्यूजन नहीं होगा, u and v respectively. Then you have to find the average speed. ठीक है? सर, फिर क्वेश्चन 4 का फाइनल आंसर क्या है? सेम ही रहेगा, टू इक्वल टाइम इंटरवल्स विद कांस्टेंट स्पीड u एंड v। तो u सपोज t टाइम के लिए ट्रैवल किया, तो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ut, फिर t टाइम के लिए ट्रैवल करेगा सेकेंड हाफ में, तो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा vt। टोटल टाइम हो गया 2t और डिस्टेंस हो गया ut प्लस vt, तो u प्लस v बाई 2 इज करेक्ट। ओके।
सर लास्ट वाले का आंसर अलग आ रहा है। अभी ट्राई करना है, अभी नहीं बताएंगे हम ये। कई सारी चीजें हैं इसमें। कितना आंसर आ रहा है? अच्छा, 2v1 plus v2 plus v3 divided by 4। नहीं ये नहीं होगा आंसर। ध्यान से करना है, ये आएगा आंसर, ये वाला यही करेक्ट आंसर। पहला हाफ v1 से ट्रैवल कर रहा है, रिमेनिंग डिस्टेंस को दो इक्वल टाइम इंटरवल्स में ट्रैवल कर रहा है। इट्स कांस्टेंट स्पीड v23। ठीक है। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी you already know, that is displacement upon time taken. And let us do one question. Average velocity is resultant displacement upon time taken. So question is, a man walks with constant speed 5 km/h for 2 hours due east. He then turns north and walks with same speed for next 2 hours. And then he runs in a direction due southwest. Then you have to calculate average velocity. यहाँ पे I cap, J cap दोनों लिखने हैं। Motion in one dimension नहीं रहा ये, this is in 2 dimension because north में और east में इस plane पे move कर रहे हैं। फॉर्मूला अभी भी सेम वैलिड होंगे। डिस्प्लेसमेंट आई कैप जे कैप में निकाल के टोटल टाइम से डिवाइड कर देना। तो इसमें ऐसा कर सकते हैं, पहला वाला डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, दूसरा वाला डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, तीसरा वाला डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। फिर एवरेज वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। आई कैप जे कैप साथ में लिखना है, नॉर्थ है तो जे कैप, ईस्ट है तो आई कैप। पहला वाला आई विल राइट, सो थर्ड वाला मैं लिख देता हूँ। थर्ड वाला सर 22। अगर स्पीड फाइंड करना है तो डिस्प्लेसमेंट क्यों लिखना है?
स्पीड फाइंड करना है तो डिस्प्लेसमेंट क्यों लिखना है? बिकॉज दिस इज आवर फॉर्मूला फॉर एवरेज वेलोसिटी, ऐसे डिफाइन करते हैं। एवरेज वेलोसिटी इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स, इंडिविजुअल डिस्टेंस ट्रैवल पे और टाइम पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ नेट डिस्टेंस ट्रैवल पे, नेट डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। ओके सर। ओके, इसलिए नेट डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करके पहले इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, फिर नेट डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, फिर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। 20√2 किलोमीटर पर आवर। तो आई जे कैप फॉर्म में लिखना है। फिर डेल्टा एक्स 3 कैसे मिला? डेल्टा एक्स 10, ये वाला, 3 थर्ड वाला। ये वाला। अच्छा, तो ऐसे लिख सकते हैं कि साउथ वेस्ट जा रहा है, 20√2 किलोमीटर पर आवर से 1 घंटे ट्रैवल करेगा तो डिस्टेंस आएगा 20√2 किलोमीटर, और वो भी साउथ वेस्ट, ये वाला नॉर्थ लिखते हैं, तो ये साउथ वेस्ट हो जाएगा। मतलब ये एंगल है 45 डिग्री, साउथ वेस्ट है तो 45 डिग्री एंगल, तो कॉम्पोनेंट ले सकते हैं 20√2, तो कॉम्पोनेंट इधर लेंगे तो 20 आ जाएगा, वेस्ट में 20 आएगा तो -20 आई क्या, फिर साउथ में भी 20 आएगा, 20√2 cos 45 और 20√2 sin 45। तो ये जो हो जाएगा 20√2 sin 45 हो जाएगा, और वेस्ट में हो जाएगा 20√2 cos 45। क्लियर हुआ? हाँ सर। ओके, anyone got the answer? टोटल ऐड करेंगे तो ऐसा आएगा -10 आई क्या, सर -2 आई कैप प्लस जे कैप। हाँ, डिवाइडेड बाय 5, तो -2 आई कैप -2 जे कैप। अच्छा, वेक्टर्स हमने पढ़ लिया है, तो मैग्नीट्यूड निकालना चाहे तो सीधे 2√2 लिख सकते हैं, √a² + b²। सो 2√2 वेलोसिटी हो जाएगी किलोमीटर पर आवर, पर सी -2 है, मीन्स साउथ वेस्ट में आ रहा है डायरेक्शन, है ना, साउथ में -2 और वेस्ट में -2, तो इसको लिख सकते हैं 2√2 किलोमीटर पर आवर ड्यू साउथ वेस्ट। अगर शॉर्ट में लिखना चाहे तो दिस विल बी दी एवरेज वेलोसिटी। ध्यान रखना, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है, ना कि इंडिविजुअल स्पीड और इंडिविजुअल टाइम पे। टोटल टाइम पे डिपेंड करता है और टोटल डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। किसी को कोई क्वेश्चन इसमें? नमन, क्लियर हुआ? नहीं सर, क्लियर नहीं हुआ कौन सा वाला पार्ट? सर। ये कैप कैप आई कैप जी कैप। आई कैप जे कैप वेक्टर में पढ़ा था हमने, तो देखो पहला हाँ वाला जो सर, है, पढ़ा था। हाँ, 5 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल कर रहा है ईस्ट में 2 घंटे के लिए, तो 10 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो ईस्ट में ट्रैवल किया तो हम आई कैप लिख देते हैं, और 5 किलोमीटर पर आवर 2 घंटे के लिए। फिर जब नॉर्थ में टर्न किया तो सेम 5 किलोमीटर पर आवर 2 घंटे के लिए, तो 10 किलोमीटर ट्रैवल किया, बट नॉर्थ में ट्रैवल किया, तो दैट इज वाई एक्सिस, वाई एक्सिस को हम लिख देते हैं जे कैप। यहां तक क्लियर है? हाँ सर, यहाँ Okay. तक क्लियर है। अभी वेक्टर वाले लिंक्स में आई विल सेंड यू अगेन, है ना, मेरे से फिर से देखना है वेक्टर वाले लेक्चर्स। सो सी, साउथ वेस्ट में 20√2 किलोमीटर
ट्रैवल करेगा, बिकॉज 1 घंटे के लिए 22 किलोमीटर पर आवर के लिए 1 घंटा साउथ वेस्ट। तो कॉम्पोनेंट ले सकते हैं cos 45, तो डिस्प्लेसमेंट का ही कॉम्पोनेंट लेते हैं जिससे एंगल लगा हुआ है, दैट इज cos 45, और दूसरा वाला विल बी sin 45। तो 20 √2 cos 45 will be 20, 20 √2 sin 45 will be 20, -20 आई क्या, -20 j क्या। यहां तक क्लियर है? तो हाँ सर। वेक्टर्स रिवाइज कर रहे हैं तो और क्लियर आइडिया लगेगा फिर इसमें कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर सारे डिस्प्लेसमेंट ऐड कर दिए तो नेट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, और नेट डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। अभी और क्वेश्चन फिर से करेंगे हम इसके, जब 2 डायमेंशनल मोशन स्टार्ट करेंगे तब। अभी 1D मोशन पे वापस आ जाता है। सो 1D मोशन में सिर्फ एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग में ही मोशन होता है। सो 1 डायमेंशनल मोशन में सिर्फ एक डायरेक्शन में मोशन होता है। तो हमने 2 फॉर्मूला तो ऑलरेडी लिख लिया, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज, ये वाला जस्ट राइट इट अगेन। So distance traveled is total path length traveled, x is position, delta x is change in position, that is final position minus initial position. Average speed is distance traveled upon time taken, average velocity is displacement upon time taken. ये याद रखना है, रट लेना है, हमेशा टिप ऑफ द टंग पे होना चाहिए। बस कभी भी ऐसा बोला जाए कि एवरेज स्पीड क्या है तो कभी भी स्पीड का एवरेज नहीं लेना है, हमेशा डिस्टेंस ट्रैवल कैलकुलेट करना है। अभी बता रहा हूँ बट स्टूडेंट्स 2-3 महीने बाद फिर से भूल जाते हैं, एग्जाम में भूल जाते हैं। फॉर्मूला टेस्ट होगा तो ये सब पूछा भी जाएगा, इसलिए हम फॉर्मूला टेस्ट लेते हैं कि बेसिक फॉर्मूला से याद रहे। अच्छा, इसके बाद ये तो एवरेज वेलोसिटी था, एंड देन वी डिफाइन अ क्वांटिटी कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी को हम लिखते हैं, यहाँ पे वेक्टर साइन लिखते हैं, डेल्टा एक्स वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। वेक्टर ना भी लिखे तो 1 डायमेंशन में तो चल जाएगा, आई कैप लिख देंगे बाद में, ठीक है। डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी मतलब चेंज इन टाइम, पहले भी डेल्टा टी यूज कर रहे थे, चेंज इन टाइम। दिस इज एवरेज वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर बहुत ही स्मॉल टाइम ले लिया जाए तो उसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है दैट विल बी dx। मीन्स बहुत ही स्मॉल टाइम dt में अगर पार्टिकल dx डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है दैट विल बी कॉल्ड इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हम लिखते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को सिर्फ v लिखते हैं, दैट इज dx/dt। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में किसी भी इंस्टेंट पे कितनी वेलोसिटी है। अभी तक एवरेज कैलकुलेट कर रहे थे, बीच में क्या हो रहा है दैट वी वर नॉट वरीड अबाउट, बट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज v इक्वल्स टू dx/dt। और वेलोसिटी डिफाइन करने के बाद फिर हम डिफाइन करते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन, so again average acceleration is change in velocity upon time taken। ऐसा नहीं कि 2 एक्सेलरेशन का एवरेज लिया फिर वो एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा, दैट वुड बी रॉन्ग। to find change in velocity upon the time taken। So average acceleration, it will be written as delta v by delta t। delta मतलब v final minus v initial upon t final minus t initial। डेल्टा का मतलब होता है फाइनाइट चेंज। चेंज फाइनाइट चेंज, डेफिनेट चेंज। फाइनाइट चेंज मतलब बहुत छोटा चेंज नहीं है, देयर इज अ फाइनाइट चेंज। सो डेल्टा एक्स होता है चेंज इन पोजीशन, सो एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल।
तो घड़ी ऑन किया तो पहले पोजीशन एक्स आई था, टाइम नोट किया तो टी आई आया, फिर फाइनल टाइम नोट किया तो टी एफ आया, तो टी एफ माइनस टी आई। तो ये एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। अगेन इट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। अच्छा, एवरेज जब भी है फिजिक्स में, अब जब भी फिजिक्स में एवरेज फाइंड आउट करना है तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी फाइंड आउट करेंगे फंक्शंस के लिए, है ना। इंडिविजुअल वैल्यूज नहीं है ये, जैसे स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते थे तो एवरेज में ढेर सारी क्वांटिटीज को लेके ऐड करके डिवाइड कर देते थे जितना नंबर होता था क्वांटिटी का। बट यहाँ पे चेंज इन वन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन अदर क्वांटिटी, दिस इज कॉल्ड एवरेज थिंग। इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी डिफाइन करने के बाद वी कैन डिफाइन इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन। मतलब किसी एक इंस्टेंट पे, सपोज t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे कितना वेलोसिटी है या कितना एक्सेलरेशन है, दैट वुड बी इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन। इसके लिए बहुत ही स्मॉल टाइम में कितना चेंज इन वेलोसिटी हुआ, दैट वुड गिव यू इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन। सो dv by dt, यहां से एक्सेलरेशन आ जाता है dv by dt। अच्छा, ये रिलेशन चेंज नहीं होती, यही फंडामेंटल रिलेशंस है। इनके बाद काइनेमेटिक्स में कोई रिलेशन नहीं होता वन डायमेंशन में। वन डायमेंशनल मोशन में वेलोसिटी और एक्स में ये रिलेशन आ गया, और यही से 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव किए गए, यही फंडामेंटल है। तो v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, ए इज इक्वल टू डी बी बाई डी टी। और एक और रिलेशन हम डिराइव कर सकते हैं चेन रूल यूज करके। सो यूजिंग चेन रूल आई कैन राइट using chain rule I can write acceleration dv by dt है। सपोज मैं इसको लिख सकता हूँ dv by dx और dx by dt, ऐसे लिख सकते हैं। तो dx by dt क्या आ गया हमारा, एक्सेलरेशन, नो वेलोसिटी। तो ये हो गया dv by dx इनटू वेलोसिटी। तो चेन रूल से हम अपना थर्ड रिलेशन लिख सकते हैं यहाँ पे, एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट dv by dx। dv by dx को हम बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। अच्छा, ग्रेडियंट मतलब चेंज विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज पोजीशन, चेंज विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन। और रेट मतलब होता है, ये सब फिजिक्स के टर्म्स है। अगर रेट बोला जाए तो रेट मतलब चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। और ग्रेडियंट बोला जाए तो चेंज विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बोलते हैं हम एक्सेलरेशन, जो कि यहाँ पे ट्रू है। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन हम बोलते हैं वेलोसिटी, दैट इज ट्रू हियर। रेट मतलब चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, और ग्रेडियंट में चेंज विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन। ये सब टर्म्स हैं, वर्ड्स हैं, टर्मिनोलॉजी तो रिपीट होते रहेंगे फिजिक्स में। सो 3 रिलेशंस को हम दोबारा लिख लेते हैं अच्छे से। सो वेलोसिटी इज dx by dt, इसको हम बोलते हैं इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। देन एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं, सेकंड रिलेशन है dv by dt, एंड एक्सेलरेशन को हम वेलोसिटी और पोजीशन के टर्म्स में रिलेट कर सकते हैं, दैट विल गिव यू द थर्ड रिलेशन। इन्हीं 3 रिलेशंस पे ही पूरा काइनेमेटिक्स जो वन डायमेंशन है, ये इन 3 रिलेशन से सॉल्व हो जाएगा। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन इसके बाद आए, ये उनका भी फंडामेंटल है। ये आता है फंडामेंटल, वो ये पूरा फंडामेंटल है। अगर मैथमेटिकल टूल्स आते हैं तो सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं फिर इससे। अच्छा, ये नोट डाउन कर लेना है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरा फॉर्मूले की लिस्ट है, फॉर्मूले की लिस्ट साथ में रखनी है, और एक अलग नोटबुक भी बना लेनी है सिर्फ फिजिक्स के फॉर्मूलाज के लिए। सिर्फ फिजिक्स के फॉर्मूलाज के लिए एक अलग सी नोटबुक बना लेनी है, बिकॉज अभी इतने सारे फॉर्मूलाज आएंगे और उनको हमेशा पूरी नोटबुक देखने का टाइम नहीं होता।
सो यू जस्ट गो थ्रू योर फॉर्मूला नोटबुक, टेस्ट से पहले एग्जाम से पहले बस फॉर्मूला नोटबुक देख लिया, क्वेश्चंस बहुत सारे क्वेश्चंस वैसे ही रिवाइज हो जाते हैं, फॉर्मूला देखा अच्छा याद है कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन इस वाले फॉर्मूले से किया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं सोचते हैं कि नोटबुक में तो लिखा हुआ है, फिर जब एंड टाइम आता है जेई मेंस का 2 दिन बचे होते हैं, पूछते हैं सर क्या करें, मैंने बोलता हूँ कि आप फॉर्मूला रिवाइज कर लो, तो मेरे पास तो 10 नोटबुक हो गई है सिलेबस होते होते। इसलिए फॉर्मूला वाली नोटबुक बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पतली सी कॉपी लेनी है और इसमें नोट सिर्फ फॉर्मूलास लिखने हैं फिजिक्स के, ऐसे केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए भी करना है। बस ऑफ कोर्स ये लिस्ट मिल जाती है ऑनलाइन और एंड ऑल, बट खुद का बनाया हुआ फॉर्मूला लिस्ट दैट इज डिफरेंट। मैंने जब फर्स्ट अटेम्प्ट में जेई दिया था तो ये सब इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करता था, एंड फर्स्ट अटेम्प्ट आई मिस्ड जेई एडवांस्ड बाय 30 मार्क्स, एंड this time there was a cutoff though. Cutoff say there was some 6-7 marks that was I was left out. In the second attempt that I gave, उसमें last के 2 days I was just memorizing formula, कोई question नहीं करना, relax करना है last के 2 दिन और सिर्फ formulas पढ़ने। और physics, chemistry, even maths के लिए भी I did the same. केमिस्ट्री में फॉर्मूलाज के साथ साथ मैंने सारे एक्सेप्शंस लिखे हुए थे, सारे के सारे एक्सेप्शंस। तो केमिस्ट्री वाला लिस्ट बड़ी बड़ी सी थी, बट बिलीव मी इट विल हेल्प यू अगर नोट फॉर्मूला नोटबुक बनाया तो। अच्छा नोट कर लिया यहाँ तक? नमन नोट कर लिया? सर बस थोड़ा सा बचा हुआ है। ठीक है ठीक है ठीक है, नोट दिस डाउन, फिर कुछ क्वेश्चन करते हैं और निर्मित के डाउट्स भी हैं वो भी डिस्कस करेंगे। बेसिक्स अंडरस्टैंड करने में हम काफ़ी टाइम लगाएंगे, मीन्स मैथमेटिकल टूल्स समझने में टाइम लगाया, काइनेमेटिक्स में टाइम लगाएंगे, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे बाद में। अभी वाले चैप्टर्स ऐसा क्या होता है ना, मीन्स फिटजी में मैंने देखा हुआ है, मैंने खुद पढ़ाया हुआ है और भी कोचिंग से पढ़ाया हुआ है, तो उनको सिलेबस खत्म होने करने की जल्दी होती है। तो अभी तक तो बहुत सारे कोचिंग्स में काइनेमेटिक्स न्यूटन्स लॉ चल रहा होगा एंड दे डोंट केयर कि पहला वाला समझ में आया या नहीं आया। So यहाँ पे we'll keep focused on understanding one topic, then moving on to the other, and you'll see कि हाँ by जुलाई अगस्त हम मैक्स स्पीड अपनी बढ़ाएंगे, टॉपिक्स जल्दी जल्दी कवर करेंगे, और क्योंकि बेसिक्स पता है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ग्राफ सब पता है, तो समझ में आएगा जब मैं बोलूँगा कि अच्छा ये ऐसे रिलेटेड है क्वांटिटी, इसका ग्राफ ऐसा बन जाएगा। यू डोंट हैव टू थिंक कि अच्छा इसका ग्राफ सर्कल क्यों बना है, एलिप्स क्यों बना, या पैराबोला क्यों बना। You'll just see the equation and दिमाग में you can visualize the parabola.